it provides that marshalling means arranging something. If the mortgage property is sold, then the buyer of such mortgage property has a right to make certain arrangements with respect to his property. It Agree. provides that if the owner of two or more properties mortgages them to one person, इसमें क्या बता रहा, if the it provides that if owner of two or more properties, अब ओनर है जिसके पास एक से दो प्रॉपर्टियां हैं, उन्हें दो एक से दो प्रॉपर्टियां एक ही आदमी को बेचा, them to one person and then sells one or more of the mortgage property to another, एक को बेच के फिर वही चीज दूसरे को बेच दिया, then the buyer is entitled to claim the mortgage debt. जो खरीदा था वो क्या होता, मॉर्गेज डेट हो जाता, बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रॉपर्टी विच इज नॉट सोल्ड टू हिम, मतलब जो जिसको दूसरे को बेच दिया था उन्हें क्या कर सकता, पैसे एक खर्चे के तौर पे क्लेम कर ले सकता हूँ जो प्रॉपर्टीज को नहीं बेचे. इट मस्ट बी नोटेड दैट दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी and right will be no way prejudice to the rights of mortgage or persons claiming under him. Any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties. इतना याद रखो कि ये किसको मिलते हैं क्लेम, जिसको मॉर्गेज करे, बायर को मिलता. बायर गेट्स द क्लेम टू मॉर्गेज. ठीक है, नेक्स्ट एक बार एग्जांपल पढ़िए, प्लीज रीड द एग्जांपल. कौन पढ़ रहे हैं अब्रार साहब? नहीं अब्रार चलेगा. For example, A is the owner of two properties X and Y. He mortgages both the properties to B. After that, he sells the property X to C. Now, here C is the owner of the property which is already mortgaged to B. Suppose B wishes to enforce his mortgage from the both the parties X and Y, then C can insist that the mortgage debt be first satisfied from the property not sold to him, that is property Y. But if even after that mortgage debt is not realized, then this section will not prevent B from proceeding against the property X. मतलब क्या बताया नहीं, ए है जो ओनर है प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी का ओनर है, एक्स एंड वाई. X and Y का है, Y का है. उन्हें ए क्या करता, मॉर्गेजेस बोथ द प्रॉपर्टीज टू बी. ठीक है, Agree. देन ही सेल्स द प्रॉपर्टी एक्स टू सी. एक प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज कर दिया, मॉर्गेज Agree. करे बाद में सी को बेच दिया. Agree. एक प्रॉपर्टी, नाउ सी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी which is already mortgaged to B. Suppose B wishes to सही. enforce his mortgage from both the properties X and Y. Then C, अब इन्हें क्या करा, इन्हें मॉर्गेज कब्जा ले रहा है इन्हें. B क्या कब्जा लेना है, उसको मॉर्गेज कर दिया ना उन्हें. Agree. Then C can insist that mortgage debt be first satisfied. अब C क्या बता रहा है उन्हें, C क्या बोल रहा हूं, C क्या बता रहा है कि भाई उसको पहले मॉर्गेज डेब्ट बी फर्स्ट सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रॉपर्टी नॉट सोल्ड टू हिम. मतलब उसका जो पैसा दिया ना वो पहले पैसा इन्हें क्लेम कर ले रहा. बट इवन इफ द आफ्टर द मॉर्गेज डेट इज नॉट रियलाइज्ड, माने अगर अगर बेचे बाद में भी अगर वो खर्चा मॉर्गेज का खर्चा कंप्लीट नहीं हुआ, देन बी को ये कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सकता कि उसको बेचने से, कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी एक्स को बेचने से. समझ गया. ठीक है, इसको बोलते हैं मार्शलिंग. ये मार्शलिंग कॉन्सेप्ट आता है आपको फिर आगे. ठीक है, ये एक क्या बोलते हैं केस लॉ है, देखो प्लीज रीड द केस लॉ. ये मार्शलिंग का एग्जांपल है, कौन सा है. X entered into an agreement of sale of a piece of land with Y. Y paid the advance and got the possession of the land. However, X failed to execute a sale deed in favor of Y. Y constructed a boundary wall, but his land was
encroached upon by a trespasser. Why move the court to restrain the trespasser from interfering in his peaceful possession on the land? Whether Y is entitled to protect his possession. घंटा कैसा करता सब ने पोजेशन ही तो डॉक्यूमेंट ही नहीं लिया शायद ना इन्हें करीब So X entered an agreement of sale. Agreement of sale हुआ हाँ of a piece of land with Y. एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ लेकिन पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका. वाई एडवांस पोजीशन देके भी ने नहीं हुआ पोजीशन ले अभी लिया. एडवांस देके पोजीशन ले लिया ना. सही है अब उन्हें क्या हुआ? X failed to execute a sale deed in favor of Y. सही है Y constructed a boundary wall, सही but है his land was encroached by upon a trespasser. माने कोई आके कब्जा कर सही है लिया. अब Y अग्री क्या है, कोर्ट को चले गया कि भाई मेरा पीसफुल सही पोजीशन पे मैं इंटरफेरेंस हो रहा बोल के. अब सही है क्या वाई का टाइटल नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल है. सो क्या जा सकता, नहीं जा सकता? आंसर फैक्ट्स पढ़िए. मेरे हिसाब से तो नहीं जा सकता होगा फैक्ट्स पढ़िए, कानून के हिसाब से चलो ना. okay X entered into an agreement of sale of piece of land with Y paid the advance and got the possession of the land. However, X failed to execute a sale deed in favor of Y. B constructed a boundary wall, but his land was encroached upon by a trespasser. Y अच्छा वही कुछ क्वेश्चन कर रहा ओके विच गॉट फैक्ट्स इट कर रहा हूँ. आंसर पढ़ेंगे सब क्वेश्चन इन्वॉल्व. whether Y is okay. Law applied. A contract for sale does not confer title in immovable property. Is in Ramesh Chand Ardavatia versus Anil Panjwani, All India Record 2003, Supreme Court 2508, held that the person in possession may not have title to the property, yet if he has, if he has been इंडक्टेड इनटू inducted into पोजीशन. possession by the rightful owner and is in peaceful and settled possessions of such property, he is entitled in law to protect the possession until dispossessed by due process of law by a person having a title better than what he has. मतलब So, I think उन्हें वाई को अथॉरिटी दे रहा हाँ, उन्हें देखो, आपको जब एग्रीमेंट ऑफ सेल करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में टाइटल नहीं मिलता. लेकिन जिसकी जमीन है, अगर उन्हें राइटफुल पोजीशन दे दिया और सही राइटफुल है पोजीशन देने के बाद उन्हें उस पर बाउंड्री वॉल बना लिया, राइटफुल सही पोजीशन है देने के बाद उसका बाउंड्री वॉल बना दिया, तो उसके पास पूरा हक है उसको सेव करने का. दो उसके पास टाइटल नहीं है, बट उसके पास पूरा हक है उसको सेव करने का. आंटी अनलेस ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके उसको कोई दूसरा पूरा प्रोसेस करके दूसरों के नाम पे नहीं हो जाना. अब इसे कौन सही कब्जा करा? ट्रेसपासर कब्जा करा, जिसका टाइटल ही सही है नहीं है. तो इसका पूरा राइट है उसको सेव करने का. नेक्स्ट पढ़िए. ए पर्सन इन पोजीशन ऑफ. एक सेकंड सर A person is in possession of the property cannot be forcibly dispossessed by another rank trespasser. And even if the latter does so, the former may be entitled to restoration of possession because the law respects peaceful possession and frowns upon the person who takes the law in his own hands. नहीं कानून अपने हाथ में नहीं लेना. जी नेक्स्ट. उसके बाद possession if he is in possession of the property in part performance of contract for sale and the requirements of section 53A of the Transfer of Property Act are satisfied, he may protect his possession even against the true owner. अपना खुद जो Even जिसकी against the true owner. जमीन है उसको भी भगा दे सकता. Even against the true owner. यस. एग्रीमेंट साल उतना पावरफुल है. Oh. नेक्स्ट. Section 6
Section 6 of the Specific Relief Act 1963 provides for any person dispossessed without otherwise than in due course of law being entitled to claim and successfully sue for recovery of possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit, if the suit is brought before the expiry of 6 months from the date of dispossession, except against the government. Conclusion. Thus, according to the law discussed above, in the given factual situation, Y is entitled to protect his possession against the trespasser, as Y has been put in possession of the land by its rightful owner. ठीक है, अगर आपके पास एग्रीमेंट ऑफ सेल है तो क्या करना है आपको? इफ इट इज एग्रीमेंट ऑफ सेल है तो आपके पास बेटर टाइटल नहीं भी रहा तो अगर कोई ट्रेसपास कर रहा तो आप वो अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जी। सो ये था अपना मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके बाद में फिर आ गया एक केस पढ़े थे। सो इससे अपना सेल Case का law. कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, मॉर्गेज। Mortgage. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्गेज। अब आपको क्वेश्चंस कैसे आते पढ़िए एक बार। Define mortgage, mortgagor, and mortgagee. Mortgage money and mortgage deed. हम्म, Discuss the essential elements of mortgage. What are the modes of completion of mortgage? सुनिए क्या अभी क्या 15 पूछ मार्क रहा का है? नहीं है। ये पूरे जितने भी टॉपिक हैं पूरे पनामा के थे। सेक्शन नंबर इंशाल्लाह। 13, चैप्टर नंबर 13 तक 6 मार्क के थे। 14 15 से पूरे ओके, क्या बोलते हैं 15 मार्क के थे। 15 मार्क की इंशाल्लाह। ठीक है, कल से तो स्टार्ट करें, कल सेल स्टार्ट करें, आज मॉर्गेज है। जी साहब, तो जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे पर 15 मार्क के है, जो भी आप जितना पॉसिबल हो सका अपन इंशाल्लाह। कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जी। नेक्स्ट। सो क्वेश्चंस कैसा आता है आपको? Section डिफाइन मॉर्गेज, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी एंड मॉर्गेज डीड, डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज, व्हाट आर द मोड्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, mortgage. तो अपना अगर सबसे पहले क्या देखना है आपको, सेक्शन 58 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कौन सा सेक्शन है डिफाइंड है मॉर्गेज? सेक्शन 58 ए ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंस। Section 58A. तो एक ही Mortgage. सेक्शन में Mort मॉर्गेज भी है, मॉर्गेजर भी है, मॉर्गेजी भी है, मॉर्गेज मनी भी है, मॉर्गेज डीड भी है। ओफो, एक ही सेक्शन में पूरे आ गया। मॉर्गेज बोल दो 58 इस है, याद सेक्शन रख में लेना। लपट के दे दिया उन्होंने आपकी, क्या बोलेंगे आप लोग क्या याद करते हो बोल के 21 में दे दिया, क्या सेक्शन है याद करते हो? सिंपल मॉर्गेज में 8 वर्ड है, मॉर्गेज के जो है सब 5 टर्म्स है। 58A बोल के याद रख लेना, शॉर्ट फॉर्म। यस, ये अगर आप पूछा तो उन्हें 6 मार्क में अलग अलग भी पूछ सकता, सिर्फ मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, सबका एक ही चांस से लिखना है। क्लास पूरे डाल देंगे, सब सेक्शन के साथ डाल देंगे, उसको समझा देंगे पूरा 15 मार्क में जैसा भी इंशाल्लाह। आता मॉर्गेज। So 58A of transfer of property defines the term mortgage, mortgager, mortgagee, mortgage money and mortgage deed. ठीक है, so let us see the definitions. Mortgage 58 का A A. में दिया हुआ है। So what is mortgage? Please read. Mortgage is the Mortgage provides the mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the for the payment of purpose, क्या money है ये? advance. What is it? पहले तो क्या है, Transfer of an mortgage is interest. a ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ए राइट। ठीक है, इन Right. स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल नहीं आता, मूवेबल में आ गए तो प्लेज आता, याद रखो। मूवेबल का मतलब है प्लेज। ठीक है, Yes. द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन।
इसका मकसद क्या है मॉर्गेज करने का? पहला मकसद क्या है? द पेमेंट ऑफ Transfer of मनी interest एडवांस्ड। are to be advanced by way of loan या तो पैसे देना, or या तो कैसा पैसा देना, लोन के तहत पैसे देना। सेकंड, okay. एंड एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, माने आज का या एग्जिस्टिंग या कल का कर्जा कल वापस देने का। थर्ड, Mm-hmm. Okay. उसके बाद क्या है? Performance of The performance of an engagement which may विच give मे rise गिव to a राइज। देखिए, जब भी वेन एवर यू आर रीडिंग द बेयर एक्ट, या न तो जब भी आंसर पढ़ रहे तो आपको दो ही चीजों में देखना है लॉ। वन इज शल एंड वन इज मे। शल का मतलब है कैसा भी करना ही करना है, मे का मतलब है मर्जी है, चॉइस रहती है आपके पास। ठीक है। सो क्या करना है? okay. परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू पेक्यूनरी लायबिलिटी। पेक्यूनरी का मतलब है मनी रिलेटेड, ठीक है, करेंसी रिलेटेड। पेक्यूनियरी माने अमाउंट कुछ मिल रहा। तो तीन चीजा हैं क्या सिक्योर करने के लिए मॉर्गेज कर। पहले मॉर्गेज है क्या, व्हाट इज मॉर्गेज? Transfer of ट्रांसफर interest. ऑफ इंटरेस्ट है। कौन सा किसका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर रहे? Specific स्पेसिफिक immovable इमूवेबल property. प्रॉपर्टी का। और क्या सिक्योर का पर्पस क्या है? सिक्योर करने के तीन पर्पसेस है। पहला, Payment व्हाट of इज द फर्स्ट money वन? advanced. पेमेंट ऑफ मनी एडवांस बाय वे ऑफ Advance लोन और loan. An existing or future debt. एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट। थर्ड, The performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच गिव राइज टू, मे गिव राइज टू मतलब हुए तो हो सकता, गिव राइज टू Which may or पेक्यूनियरी may not लायबिलिटी। बोले सर. मे और मे ना, मर्जी। अगर ऐसा कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, पैसा भी राइज हो रहा है तो हो सकता पेक्यूनियरी लायबिलिटी इंस्टेंट हो सकती। ठीक है, मनी रिलेटेड थिंग इज Okay. पेक्यूनियरी, याद रखो। Okay. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। अब एक तो ये मॉर्गेज हो गया। अब मॉर्गेज क्या है? एक Mortgager. एक कॉन्सेप्ट Mortgager. है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके जो पार्टीज क्या क्या हो रहे हैं? Mortgager. हु इज द मॉर्गेजर? The transferor is called mortgager. So transferor is called mortgager। उसके बाद In its definition, executioner, execution, purchaser of whole or part of the equity of redemption. इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन मतलब क्या है? मॉर्गेजर का मतलब क्या है? सिंपल याद रखो, ट्रांसफरर The, जो t- भी होता है ना मॉर्गेजर होता है उससे। इट टर्म्स the इंक्लूड द term includes डेफिनेशन in its definition एग्जीक्यूशन execution परचेजर purchaser, ऑफ होल और पार्ट। इक्विटी ऑफ part रिडेम्पशन, of the equity, इसका मतलब क्या है इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का? equity of मतलब जो प्रॉपर्टी redemption. मॉर्गेज कर रहे हैं ना उसको बोल रहे हैं Okay. इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन बोलते हैं, यहाँ जो पे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे specific immovable property. हैं। यस। थर्ड, मॉर्गेजी। व्हाट इज मॉर्गेजी? The transferee is called a mortgagee. ट्रांसफर इज कॉल्ड एज Mortgage. मॉर्गेजी। ठीक है, मॉर्गेज मनी क्या है? Mortgage money, the principal money and interest of which payment is secured for uh, for the time being are called the mortgage money. तो जो पैसा ले रहे हैं आप, द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट, मॉर्गेज मनी प्रिंसिपल भी इंक्लूड होता और इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता, विच पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग। माने पैसे जब तक आप उसके बाद उन्हें खाली करके जा रहा मॉर्गेज ही, तो पैसे आपको वापस कर देना पड़ता मॉर्गेज में, आर जी. कॉल्ड द मॉर्गेज मनी। इसमें प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। और वो सिक्योर क्या है? फॉर टाइम बीइंग कर रहे हैं, माने तो टेम्पररी सिक्योर कर रहे हैं आप पैसा। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज Mortgage मनी। money. उसके बाद क्या है?
तो ये नॉर्मल टर्म्स में रहन को ही बोलते हैं। हाँ, रहन कुछ बोलता, अगर रिमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रहन बोलते, अगर मूवेबल जी। प्रॉपर्टी है तो प्लेज बोलते। प्लेज। ठीक, नेक्स्ट। समझ ओके। में आ गया कौन से सेक्शन में मॉर्गेज है डी मॉर्गेज? 58 58 ए। डेट ए, उसमें उसी में आपको मॉर्गेज आ गया, मॉर्गेजर आ गया, ए। मॉर्गेज आ गया, मॉर्गेजी आ गया, और मॉर्गेज डीड भी आ गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ, क्लियर। ठीक है, चलो। उसके बाद में क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज, माने अगर मॉर्गेज कंप्लीट होना है तो क्या है? Following are essential elements of a mortgage. First, एसेंशियल transfer of an एलिमेंट्स क्या है interest. मॉर्गेज? फर्स्ट क्या रहना? Transfer of व्हाट an इज फर्स्ट interest. थिंग? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। पहले आप हेडिंग्स पढ़ लेंगे, फिर एक एक हेडिंग विल अंडरस्टैंड। दूसरी चीज क्या है? Interest transferred must be in specific immovable property. तो पहले तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट रहना, फिर उसके बाद में Interest transferred must be in a specific स्पेसिफिक immovable property. इमूवेबल प्रॉपर्टी रहना, फिर स्पेसिफिक इमूवेबल रहना, याद रखो। थर्ड, उसका Purpose कोई of transfer पर्पस of रहना, interest. उसका कोई पर्पस रहना। खाली दिल बोला कर लिया वैसा नहीं रहता, पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट रहना। ठीक है, उसके बाद Right. देन ये तीन पर्पस, तीन एसेंशियल्स है। ठीक है, तो पहला एसेंशियल क्या है? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, प्लीज रीड। Transfer of an interest. There must be transfer of some interest. It must be noted that absolute interest is not transferred in case of mortgage. हम्म Ownership of the property comprises of a bundle of rights, and when a person executes the mortgage, he parts with some of the rights in favor of the mortgagee. हम्म Whether there is transfer of interest depends upon the intention of the person. इंटेंशन ऑफ द पर्सन। उसके बाद Gathered from the document as a whole. ओके, नेक्स्ट। Interest transferred must be in a specific immovable property. तो इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड मस्ट बी ना Immovable स्पेसिफिक property इमूवेबल which is प्रॉपर्टी। uh, immovable property which is being mortgaged must be specifically mentioned in the deed. नहीं, लिखना Security पड़ता कि must भाई be ये in the form प्रॉपर्टी of कर a रहे हो। specific, हाँ, पूरा प्रॉपर्टी के पूरे डिस्क्रिप्शन डिटेल। लिखना पड़ता आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या क्या है क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट। Security must be in the form of a specific immovable property, which means the description. हेलो, हेलो। हाँ, देयर मस्ट बी नो जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। द मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड विलेज comprised of sanad Qasim, and talukdar be sufficiently specific। ठीक है, नेक्स्ट। right. सेवरल एग्जांपल्स, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एग्जांपल्स क्या है? व्हाट आर द स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी? हाउस सिचुएटेड इन अहमदाबाद, Uh, owned and possessed by us, all zamindari property, all properties appearing under bhag, a mortgage of equity of redemption, and our right and property in तालुक। माने सब डिस्क्रिप्शन देना आप कंप्लीट, इसको ऐसा सिचुएशन रहना, यू शुड डिस्क्राइब करना कि भाई ये पूरी प्रॉपर्टी इधर है, कौन पोजेस कर रहे, कौन ओन कर रहे, क्या वो जमींदारी प्रॉपर्टी है या एग्रीकल्चरल है या कोई ताल्लुक क्या है उसका। ठीक है, तो ये रहता आपको इंटरेस्ट मस्ट बी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड पढ़ो, प्लीज रीड द थर्ड एसेंशियल।
थर्ड क्या है एसेंशियल? चलेगा चलो। आरिफ पढ़ो। हेलो। अस्सलाम आरिफ पढ़ो। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम फरीद साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से मोहिब सर। क्या है मोहिब साहब, क्लासेस शुरू हो गए, इतला तक नहीं दिए मेरे दोस्ता मेरे को। ठाकुर को क्या बोलते हैं, दगाबाजी करते रहे ठाकुर के साथ। सजा देना फिर वैसा बोलूंगा। मेरे मेरे दोनों हाथ कट गए ना साहब। ठाकुर तलवार चलाएंगा कैसा। तो जयवीर को पकड़ के लाना पड़ता है। आरिफ भाई तो एक अलग खुशी में है, उनकी खुशी के आड़े आना नहीं चाह रहा हूँ मैं। क्या बोलते हैं? और खैरियत से सर। कितने दिन हो गया सर ये शुरू हो गए? कल ही स्टार्ट हुआ ऑनलाइन। चला जाए शुरू हो गया इंशाल्लाह, तो हमारे सही टाइम पे ज्वाइन कर। अबरार साहब और आरिफ साहब एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिए इधर अपने क्लासरूम में। अच्छा, और बाकी के एक लोग एक कहाँ हैं? प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी लाके, क्या बोलते हैं, उस पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्रिएट कर दिए। क्लेम कर दिए। अब अबरार साहब और आरिफ साहब तो अच्छा। प्रॉपर्टी के बेस पे इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट पहुंच रहा बोलो सबको। अच्छा है। ऐसा वैसा तो भी पहुंच रहा। ये खदीर साहब कहाँ हैं, सलीम साहब कहाँ हैं? सलीम साहब तो सामने बैठे हुए हैं मेरे। अच्छा, और उनका खदीर उनके उन्हों साहब? उन्हों उन्हों खाली इनकमिंग हो रही है, आउटगोइंग नहीं हो रही हो। और एक माइक में। अच्छा। सलीम साहब की आवाज आ रही है आपको? हाँ आई, अभी आई, थोड़ी सी आई। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। आ रही है आवाज? सर ये वीडियो जो आ रहा ना सर, ये कैसा है सर, ये पेज, ये सब्जेक्ट कौन सा है अपन पढ़ रहे हैं सर? अरे प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट अच्छा, का नाम प्रॉपर्टी सलीम है। साहब की आवाज आ रही है आपको? थोड़ी हल्की आई, मगर समझ में तो कुछ नहीं आया। एक मिनट। हेलो। हेलो जी। हेलो। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। अब आ रही? हाँ आ रही, क्लियर आ रही। हेलो। 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 हाँ अस्सलाम वालेकुम, आ रही आवाज आ रही? हाँ वालेकुम सलाम सलीम साहब, खैरियत से? आ रही है, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आवाज भी सब आ दुआ। रही। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए बहुत खुशी की बात है, आपको उससे मुलाकात हो रही, बात हो रही बहुत दिन के अरे बाद। हमारी को भी उतनी ही खुशी है जितनी आपको खुशी है, माशाल्लाह आप भी माशाल्लाह। मौजूद है। जी हाँ जी हाँ, आज खदीर भाई के वो रिलेटिव्स का इंतकाल हुआ तो उधर गए हुए थे, मैं अकेला हूँ साहब के साथ। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए नहीं है आज यार, नहीं, अल्लाह आसान करे उनके घर वालों के साथ। हम्म, मैं सुने। जी, आवाज मोहिब सर की कम आ रही है अब। सलीम साहब की आ रही, मोहिब सर की नहीं आ रही। अब मोहित साहब की नहीं आ रही आवाज आपको?